Hello, everyone. Welcome to, thank you so much for joining us. Welcome to this webinar today, which is part of a bi-monthly webinar series organized by the Western Himalaya Vikalp Sangam. Western Himalaya Vikalp Sangam is a process to bring together people and organizations working on alternatives, which move beyond the present day disruptive and exploited systems and promote an alternative development process. As part of a project funded by Aisha Group Foundation, we are running this bi-monthly series to talk about issues pertinent to the Western Himalayan region. And as second in series, we bring to you this webinar by Jagori Grameen. And I will now move on to ask Shilpa to moderate this webinar. He's not able to connect. So maybe you continue till she's able to connect. Yeah. Sure. Okay, friends. Thanks a lot for joining this webinar. We had to postpone it last time, but this time I think there are more people. And thank you so much, Rijita, for really designing it and making it possible. Thanks, Akanksha. Um, Friends, I would like to start by saying today I read uh, that the doomsday glacier in Antarctica is melting down at a very high speed, and it would lead to nearly sea level to rise by 7 feet. So you can imagine what a disaster that is. I'm just talking about it in a much larger context because whatever is happening in Himalayan region or in Himachal has a direct connect with the larger challenges, larger disasters, environmental as well as climate disasters. And we are really at the tipping point at the moment. It's right in front of us, and there's no time to say we will do something. We have to either rise to the occasion. We've already lost so much in terms of the our greenery, our habitat, and lot more. For today, I would kind of dwell on primarily four issues to begin with, and then Someda will take over. The the unprecedented rains during the 2023 and now in even 2024. The monsoon season in several pockets has really wreaked havoc across the state. Extreme events such as flash floods, cloudbursts, associate landslide, sinking of land, and complete failure of populated hill slopes devastated lives across the state. When I was reading, the current estimate indicate nearly 500 people lost their lives. People are still missing. 377 have been injured in the various events. Besides this huge loss of human lives, 10,140 livestock perished and 5644 cowsheds too were destroyed. Damages to buildings have been significant with 2546 houses. We could only do a survey of nearly 120 households in the Kangra district. So the house lost is significant in the district, and 317 shops completely damaged and 10,853 houses partially damaged. Now you can imagine the extent of loss and damage and really the consequent impact on the lives of people to begin with. The disaster impact is faced very severely by people who we met, whoever we in touch, where we went for relief, and really the disaster management is extremely difficult and impossible unless a large number of stakeholders come together. Three extreme spells, 8 to 11 July, 14 to 15th August, and 20 to 23rd August. And can you imagine 163 landslides and 72 flash floods have been responsible for most of the impact. Major districts are Kulu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Solan, Chamba districts, and most affected, and also the Kangra district.
In addition, huge losses have occurred for agriculture and horticulture lands due to various hazardous landslides and flooding. Public property has been significantly damaged, especially rural district and state roads, national highways, and in particular the four-lane roads. I'll come to that later. Uh, and also, many irrigation and water supply schemes were also washed away. Abaji, can I request you to turn on your camera as well? Okay. Many irrigation and water supply systems were also washed away. Critical buildings and public utility buildings, like even schools, hospitals, were also damaged. And many hydropower projects and transmission lines were damaged or rendered non functional, non operational. Forest land and vegetation were also gravely affected by landslide. A total economic loss of more than 12,000 crore is what the state government has kind of uh, announced. Now, we don't know how much more it is because these are state records, and we know the loss is just unbelievable. Now, all this is most probably known to us, maybe not the extent. But what I want to come on is what is the impact on the lives of human population, especially the marginalized population, and also like elderly, physically and mentally challenged people, children, and very crucially, the population of women, because they bear the brunt of this. Once having been left without homes, we can imagine what hardship women go through in order to just provide food, provide some kind of shelter, provide care to the elderly, provide care to the challenged people, and also kind of feel that they have really lost not only the home, but the sense of belonging, the sense of kind of ancestral history, sense of relationship with the entire environment and ecology, the mango groves, things like what think is extremely, extremely central to their life, not only in terms of livelihood, but in terms of a larger ecology of their lives, ecology of their living systems and relationships, because they are also deprived of that context of being together in a network where they have created SHG groups, where they have also been together in deaths and loss. All that gets totally disrupted. So I think it is very important that we do a kind of a gendered impact, an impact on all the other marginalized community, so that we get to understand the seriousness of the issue, because I don't think that kind of a study has been done. This is also loss of homes, jobs. Lot of people got totally jobless and unemployed, dislocation. Many people didn't know where to go because no arrangements were done immediately. And the impact in terms of the, sorry, in terms of the, what we watched is where a increase in anxiety levels, uncertainties, depression and deprivation, a sense of total kind of hopelessness at that time. And it continues even today because a lot of people have still not got compensation. There are also problems around the policy of the government. For example, people have been living there for, let's say, last 70, 80 years, 60 years. They have no pattas, most probably. Now, unless they have a land patta, they will not get any compensation. So you can keep imagining how this gets incrementally a very, very challenging situation for the people who have been living there. The second issue that I'm very concerned about is the impact on the diversity of living beings. Every insect, every butterfly, every bee. I mean, I'm just talking about the smallest of the living being to the largest kind of forest dwellers. They have lost because there are also forest fires, there are also cutting of forests. And this is a significant loss of very important species and erosion of their habitat. The impact on the interconnectivity, the ecology
of this habitat system gets completely disrupted. And this is so dangerous because we don't live alone on this planet, and therefore we are significantly and organically connected to the diversity of living beings. And that disappearance of diversity will never be replenished. We will never be able to bring them back into. Along with that, the other issue, very significant, is the loss of biodiversity. In terms of all the medicinal plants, in terms of the diversity of plants that actually retain water, provide oxygen, and also the greenery and biodiversity is extremely important. And similarly, what has happened, if I come to the other point of this development model, how agriculture has got completely impacted. We have lost the sense of what we call multi-cropping systems, and now with the monocropping, and also the kind of seeds that are genetically mutilated, we are losing our cultural heritage, our agriculture heritage, and the knowledge system that existed for centuries. Now all that is happening, and it is so interconnected in terms of the impact, because one impact has impact on the entire chain of the life system of this on this planet. Now, if coming to the development model, I think Soumya will talk more on that. But once Mansi from Himdara rightly said that the mountains become a kind of a news when either tourists are being invited and called in a big way, or when disaster take place. When I was kind of looking at the pattern of disaster, so I saw that we have built more and more than 30 power projects, hydro projects. We have built quite a few what we call um, 4-lane roads. I mean, we are crazily building 4-lane roads. If you look at that landscape, you get so scared. All the trees are gone completely. The mountains are become completely naked. The boulders are hanging on those mountains. And Himachal lower mountains are not like the mountains in, let's say, Uttarakhand. These are porous mountains, and any kind of a rain, landslide, this will be a disaster. Now, why do we need 4-lane? Why are we so crazily going into a development model that is so indifferent to the kind of development that we are actually following, without looking that it will deprive people of their complete sense of kind of belonging as a citizens? I have been looking at how many more the development. There are more than 30 huge hydro projects on Vyas River and 27 on the Satluj River. These are the two prime rivers in this region, and they are the irrigation system. Then there are many more under execution and investigation. Similarly, a large 4-lane projects and tunnels and underground highways, all to increase tourism, to show that how developed Himachal Pradesh is, not realizing that, looking at the entire issue of sustainability of this model, also the issue of the ecosystem of the Himalayan region. And we cannot bring modernization, we cannot bring these kind of development model without looking into the how the entire topography and demography of this area cannot take this kind of a development model. And we have to stop and envision a totally new imaginary for protecting this entire region, protecting these mountains, protecting this ecosystem, because it is also the lifeline of millions of people, lifeline for not only people living in the Himalayan region, but also for the plateau and the
cities and villages and states, that are actually following this entire geology. And therefore, I feel that until and unless this development model is challenged, is stopped, and a new kind of a committee is formed to look into various aspects of this disaster, various aspects of the climate changes that are taking place, not to forget that we are living in a high seismic zone. Any earthquake can really bring down all these development models, bring down our cities, and create a total chaos for human life and life of the other living being. I would like to stop here for the moment, unless somebody has so many questions. Has Soumyadatta joined? Yes, I have joined. So would you like to take over from here, and then I can come in as and when? As you plan, because if anyone has any immediate questions on what you, then maybe one or two short questions, then I can start. Okay, anyone would like to please raise your hands. There's nothing on the chat. Yes, somebody Okay. has raised hand. I will just see. Soumya, are you looking? Yes. No, I don't see it. No. There was one hand I noticed, but I don't know whose. Akanksha, can you? Yes. Suhas Tai has raised the Okay, hand. Suhastai, please speak. Unmute your mic. Unmute your mic, Suhastai. Yeah. Hello. Yeah, good to see you and listen to you, Abha. And thanks for connecting. I was just wondering, it's lack of my information and understanding, but you mentioned something like Uttarakhand and Western Himalayas mountains are different. Is it? And I think there is according to my knowledge, maybe elaborate a little bit. I find that the mountains in the lower Himalayan region, what is called Dhauladhar in Himachal Pradesh, these mountains are very porous mountains, and they are most probably not as strong as higher and high altitude mountains, which might be true for higher regions like Kulu, Manali, and Spiti areas. But as far as our region is concerned, the lower region, the mountains are quite porous, and you can actually visually see them when you go through these so-called four-lane development projects all around us. Everything is. I can explain that also afterwards. Yeah, Oh, yeah, then do that. yeah. That will Why be don't good. you do Sometime that you can now? explain later. Thank you. Yeah, Soumya ji, आप start Okay. करिए. So, one question is, should I continue in English or should I Hindi अंग्रेजी mix करके बोलूं? I don't know. Whatever is the preference. I think mix कर सकते हैं आप, क्योंकि कई लोग हिंदी भाषी हैं. अच्छा, ठीक है. तो सबको नमस्कार और my apologies for joining a little late. मैं नर्मदा का जो 39th ईयर है नर्मदा बचाओ आंदोलन का, वहाँ ट्रैवल कर रहा था, तो अभी थोड़ा पहले ही पहुंचा. अभी एनबीए का ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ. तो ये जो हिमाचल का बात जो हम हो रहा है, हिमाचल प्रदेश जो हिमालयन क्षेत्र का, साथ में उत्तराखंड का, पश्चिम हिमालय क्षेत्र का जो है, टेक्निकली तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर लद्दाख ये आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फोकस है अभी हिमाचल और उसके आसपास उत्तराखंड भी कुछ है. यहाँ कुछ मुद्दे मैंने पहले साफ करना चाहता हूँ. Then we'll go into the details of what are the reasons, what are the trend, and हमारे तरफ से हम कर क्या सकते हैं कुछ लेवल में, कुछ हद तक मल्टीपल लेवल में, मल्टीपल एक्शंस. तो एक तो बहुत साफ जो है, ये जो पिछले कुछ साल में, और मैं फिर से बोलूं जो हम लोग काफी बार चर्चा कर चुके हैं अलग अलग फोरम में, ये जब हम लोगों ने पिछले 12-13 साल से ये बात उठाए थे, जो क्या क्या इन द हिमालयन फील्ड, हिमालयन एरियाज, व्हाट आर द मेजर हैजर्ड्स, मेजर रिस्क फैक्टर्स. और ये क्लियर है, जो रिस्क फैक्टर
हर टाइम डिजास्टर में बदलेगा नहीं, बदलना जरूरी है नहीं है, मैंने रिस्क फैक्टर व हैजार्ड जो होगा वो हर टाइम आपदा नहीं बनेगा यदि सही मेजर लिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो मैंने हाईलाइट करना चाहता हूँ, और ये नहीं होता है। मैंने आजकल द नंबर ऑफ डिजास्टर्स हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो बहुत सही ढंग से जो आभा जी ने हाईलाइट किया, एक डेवलपमेंट, तो मैंने इसको थोड़ा दूसरा ढंग से डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली डेवलपमेंट काफी लोगों का काफी डिफरेंट समझ है, but if you really look at it, what is now happening is insane developmentalism, and the developmental one kind of development has become an ism. So it has become like a religion. So whatever comes, whatever happens, that cannot be compromised with. So that's one problem, big problem that is contributing hugely. So it's a developmentalism and an insane version of this developmentalism. The second thing is undoubtedly the climate crisis. And in this, मैं ये भी थोड़ा सा क्लियरली बोलूं, जितनी अवेलेबल साइंस आज के दिन में है, साफ दिख रहा है आने वाले 70, 80, 100 साल में ये बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा, इस लेवल पे नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा। क्योंकि जितनी अवेलेबल साइंस हमारे पास है ये साफ दिखा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो आज के दिन में स्थिति जो है, करंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, जिसमें हम 2023 का जो द लास्ट स्टडी दैट वाज डन ऑन प्लैनेटरी बाउंड्रीज 2023 का, उसमें दिख रहा है जो आउट ऑफ 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज 6 हैव आइदर बीन ब्रीच्ड और अबाउट टू बी ब्रीच्ड। तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन जिसको पहले से ही एक्नॉलेज करना जरूरी है। जो स्थिति जो है उसको सही ढंग से समझना और उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है, तभी जाके हम सही कुछ स्टेप उठा पाएंगे। The third factor I want to highlight is this is not entirely local. A part of it is what is happening in the locality in Himachal, in Uttarakhand, but a larger part is also coming from a larger global climatic effects and other effects, including the kind of developmentalism that is being driven. That's also not entirely local. तो ये जो beyond local, आप उसको national बोलिए, global बोलिए, इनको हमें समझने का जरूरत है ताकि हम जो स्टेप लेंगे, हमारा जो एक्शंस होगा, ये कनेक्ट कर पाए। तो ये 3 जो ऊपर एक टॉप लाइन पॉइंट मैंने हाईलाइट करना चाह रहा। टू कम डाउन टू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर्स विल हैपन मोर एंड मोर, एंड व्हाट आर द रीजंस इन वेरी ब्रीफ। लॉट ऑफ पीपल माइट know a lot of this, but I want to just put them together in one place. And these are all well predicted, well projected from last 10-12 years onwards. मतलब 2010-12 से ये known है, ये projected है, predicted है। तो इस रंग का चेंज, एक तो because of the temperature, continuous temperature rise, and as you know, आपको याद होगा कि 2023 सिर्फ पिछले 160 साल का जो इंस्ट्रूमेंटेड रिकॉर्ड है, सबसे गर्म साल नहीं था, संभवतः पिछले 8000 साल का सबसे गर्म साल था। तो और ये एक आइसोलेटेड ईयर नहीं है, हर साल इस ढंग का होते जा रहा है। दूसरा, ग्लोबली जिस ढंग से मैं ये फैक्ट्स आपको सामने रख रहा हूं इसीलिए क्योंकि हिमाचल में और हिमालय में जो हो रहा है उसके साथ इसको गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, सीधा ताल्लुक है। दूसरा जो फैक्टर है, पिछले 3 साल से पूरी दुनिया का समंदर में सी सरफेस जो पहला 50 मीटर का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, इनफैक्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर पर है। तो ये जो 2 फैक्टर है, इसके चलते 3-4 चीज हो रहा है। जैसे इतनी हाई सी सरफेस टेम्परेचर होने से जितनी मॉइस्चर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज कमिंग आउट इन द एयर और उसके हवा के साथ लैंड में आते हैं। दूसरा, इफ इट इज सो हॉट इवन इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, आप सब जानते हैं जो मानसून को ड्रॉ करते हैं, वो मानसून को खींचने का लिए एक प्रधान कारण है नॉर्थ इंडिया एंड ट्रांस हिमालयन जो प्लेन्स है उसको गर्म होना। तो समर में वो गर्म होगा तो मानसून खींचेगा, लेकिन उसका गर्मी जब एक्सेसिव गर्मी का तरफ जाएगा तब वो ऐसे जगह में उसको खींच रहा है जैसे मानसून फ्रंट लाइन पिछले साल 2023 में हिमाचल में जो एक्सेसिव बारिश और एक्सेसिव तबाही मचा था, उसके कारण था जो मानसून फ्रंट था वो इतनी ऊंचाई तक चला गया, इतना हिमालय का इतना करीब चला गया था कि वहां सडनली कोल्ड फ्रंट में उसको पूरा जो मॉइस्चर कंटेंट धड़ाधड़ गिरा दिया। तो ये हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो इसके मतलब है ये छोड़ के भारतीय मौसम विभाग का एक 100 साल का, मैं कुछ साइंटिफिक बिंदु क्विकली आपके सामने रख के फिर क्या क्या हो रहा है उसको पीछे आऊंगा। भारतीय मौसम विभाग का एक 100 साल का मानसून स्टडी है, उसके साफ दिख रहा है जो मानसून के दौरान जो करीब पूरी भारत का एवरेज में जो 840 50 60 बारिश होता है, पहले 30 साल पहले तक, 30 35 साल उसमें 44 से 45 दिन में होता था। अभी उतना ही लगभग बारिश 24 से 27 दिन के बीच में हो रहा है। तो मतलब बारिश जब होगा तब बहुत तेज हो रहा है, और जब नहीं होगा बीच में जो ड्राई पीरियड ये बढ़ रहा है। इसके चलते पहाड़ में कुछ चीज बहुत ज्यादा, पर्टिकुलरली हिमालयन जो पहाड़ है, हिमालय का जो पहाड़ है, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन ए मोर फ्रीक्वेंट मैनर एंड इन मोर इंटेंस मैनर। दो चीज हो चुका है, इसको टाइम का हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ चुका है और इसको स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी ये बढ़ चुका है, और ये दोनों ट्रेंड बढ़ने का तरफ है, कम होने का तरफ नहीं है। तो इसमें एक तो जो समर टाइम में, अर्ली समर्स, आप देखेंगे जो ग्लेशियर, स्नो कवर, आइस कवर, सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, एंटायर स्नो आइस कवर इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स, ये तेजी से पिघलते हैं। तो फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट्स काफी जगह में बढ़ चुका है समर, अर्ली समर में। ये आज से नहीं है, पिछले 8-10 साल से काफी बढ़ चुका है। आप यदि नजर रखे हैं सतलुज का बेसिन में जो ग्लेशियर लेक पिछले 2019 से 2023 4 साल में जो डिटेक्टेड ग्लेशियर लेक, वो करीब 560 से 1050 में पहुंचा, मतलब लगभग दुगना हो गया। और ग्लेशियर लेक बढ़ना और इसको बड़ा होने के साथ, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ, जो सडनली एक बड़ा लेक पहाड़ के ऊपर फट जाते हैं और नीचे पूरा सडन बाढ़ होता है, एंड देन इट मेक्स अ डिजास्टर, लाइक केदारनाथ के ऊपर जो हुआ था। बट केदारनाथ was only a part of the Uttarakhand disaster 2013. It's only a small part, but most of the people who died is there from there or in that region. That's why it became known as Kedarnath disaster. But it was a much larger area. तो ये जो early summer to mid summer sudden flash floods, ग्लेशियर लेक को बढ़ना और उसके चलते ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का डर, अभी भी इस साल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है। पिछले साल सिक्किम में साउथ लोनार जो है ग्लेशियर लेक था, आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, जिसके चलते उसका नीचे बाढ़ आया, जिसके चलते तीस्ता का मेजर डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद पूरा जो डैम का, तो यहाँ डेवलपमेंटलिज्म, इनसेन डेवलपमेंटलिज्म और क्लाइमेट, ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना बड़ा तबाही मचा रहा है। तो ये चीज बढ़ रहा है और बढ़ेगा। दूसरा जो हो रहा है, इस समर का, इस पीरियड के बाद आप देखेंगे पूरी हिमालय क्षेत्र में, कुछ नॉर्थ ईस्ट का जो लोअर एरियाज है उनको छोड़ के पूरी हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत नदियां, जो गढ़, खड़, गधेरा कुछ भी बोलते हैं, नाला, बहुत सारे चीज सूख रहा है। तो उसके ऊपर आधारित जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, खेती है, उसके उद्योग है, जैसे घराट चलता था, ऐसे बहुत सारे हजारों के संख्या में बंद हो रहा है। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। तीसरी जो मैंने बोल रहा था, जो ग्लोबल इफेक्ट के लिए, जो ज्यादा मोर मॉइस्चर इज कमिंग आउट इन द एयर बिकॉज द सी सरफेस इज much higher at much higher temperature. The atmospheric air is at higher temperature. Every 1 degree temperature, if the air is 1 degree warmer, the air can hold 7% extra moisture. The seas are supplying moisture, the winds are bringing it, and the air is holding more and more moisture. तो पिछले साल जैसे 2 से 2.5 डिग्री ज्यादा था, तो आपको ऑलमोस्ट 17 से 18% एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट जो एयर होल्ड कर रहा था, जैसे ही वो ठंडा जगह में आएगा, वो एयर का होल्डिंग कैपेसिटी से काफी बाहर चला जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? उसको बारिश होके स्नो होके गिरना पड़ेगा। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एक्स्ट्रा लोड ऑफ मॉइस्चर इज कमिंग डाउन एज टॉरेंशियल रेन, एंड उसका रिजल्ट है फ्लड्स। और ये यहाँ क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट, ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये क्लाइमेट का क्राइसिस, ये भी एक इंसेन डेवलपमेंटलिज्म का रिजल्ट है। क्योंकि हमारे पूरी दुनिया का ये जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, जीडीपी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, फॉर फ्यूल एनर्जी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, ये जो चल रहा है पिछले 150 साल से, 140-50 साल से, इसके चलते आज धरती का जो हम लोग पहले सोचते थे अर्थ सिस्टम्स, हम डिफाइन करते हैं अर्थ सिस्टम्स। पहले सोचते थे धरती इतना बड़ा तंत्र है, हम छोटा यहाँ कुछ कर लिया, कुछ उधर हो गया, क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो सारी चीज जो हमने कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया,
और इतनी बड़े स्केल में किया पूरा दुनिया मिलके, अभी ये धरती तंत्र जो अर्थ सिस्टम्स, इसको डिस्टरबेंस काफी बढ़ गया, इसको स्टेबिलिटी, ये इसके बाहर हम जा रहे हैं, मैंने अभी हम लोग लिमिट में है। तो इसके चलते जो ये जो मैं बोल रहा था, जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल, क्योंकि एक्सट्रीम मॉइस्चर कंटेंट, कोल्ड फ्रंट में आना और सडन उसको गिरना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हिमालय क्षेत्र में हुआ है, जो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ये बार आप सब लोग इसको बार बार उठाए हैं, जो बहुत सारे बांध, जो सो कॉल्ड रन ऑफ द रिवर, जिसको आप पहाड़ के अंदर से बहुत बड़ा टनल बनाया, मक लिया, मक को डंप किया रिवर का साइड में, नदी का साइज छोटा हो गया, बारिश ज्यादा हो रहा है, नदी का निकलने का पैसेज छोटा कर दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा? अब मतलब नहीं, कुछ लोग जानते हो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल है फिजिक्स में, अब पानी का तेज गति बढ़ेगा, पानी ऊपर जाएगा और पानी का तोड़ने का क्षमता बढ़ेगा। जब पानी में ज्यादा तोड़ने में मिट्टी पत्थर आएगा, तब वो मिट्टी पत्थर सिर्फ पानी नहीं, वो एक एब्रेसिव का काम करता है। मतलब आप जैसे बड़ोई काम करते हैं, बकोई काम करते हैं ना, सैंड पेपर, तो तब सिर्फ पानी नहीं रहता है, पानी के साथ मिट्टी पत्थर मिलके उसको काटने का क्षमता बहुत बढ़ जाते हैं, ज्यादा एब्रेसिव हो जाते हैं, नीचे से काटते हैं, तो द एंटायर हिल स्लोप्स रन डाउन, स्लाइड, लैंडस्लाइड्स, बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड इस कारण हो रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये भी डेवलपमेंटलिज्म, साथ साथ में क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट क्राइसिस मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लाइमेट क्राइसिस एक ग्लोबल एक डेवलपमेंटलिज्म का रिजल्ट है, और लोकलाइज जो डेवलपमेंटलिज्म है, जिस बात आभा जी कर रहे थे, आप लोग बार बार उठाए हैं, 4 लेन हो, डैम्स हो, टनलिंग हो, ये है। एक बात लोगों ने उठाया है काफी जगह में, मीटिंग में, कि क्या हमें सड़क नहीं बनाना चाहिए, क्या हमें यहाँ नहीं चाहिए? पहाड़ में सड़क बनाना और प्लेन लैंड में, जो पहाड़ मतलब हिमालय जैसे फ्रेजाइल सड़क जगह में, जो सवाल सुहासताई ने की थी, ये दोनों का क्यों अलग दिखा जाता है? यदि आप कांगड़ा वैली या कांगड़ा वैली से थोड़ा ऊपर जाएंगे, कांगड़ा वैली के एरिया में, हिमाचल का इस एरिया में, धौलाधर का एरिया में, आप देखेंगे, जो आभा जी भी बोल रही थी, इसको अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट, आप देखेंगे छोटा छोटा बोल्डर, छोटा छोटा पेबल्स, मैंने मीडियम साइज पेबल, छोटा पेबल, और मिट्टी, मतलब सिल्ट, कॉम्पैक्टेड सिल्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ कोई रॉक बहुत ज्यादा उठ गया, कम है, यहाँ अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट काफी ज्यादा है। और इसके मतलब है, अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट का एडिशन पावर को बहुत कम होता है, मतलब उसके अंदर पानी नहीं जाने देना चाहिए। अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट के अंदर पानी जाएगा, माने उसको सरफेस एक्सपोज्ड होगा, वहां पानी आएगा, तो उसका जो एडिशन बहुत लूज हो जाएगा, तो पूरी स्लोप गिर जाएगा। लेकिन बिना इसको समझ के, अभी भी जब मैंने जागोरी का वर्कशॉप से आ रहा था, मैंने आने का टाइम भी, जाने का टाइम थोड़ा कम ही लिया, आने का टाइम देख रहा था कि पूरी सड़क जो बन रहा है, 4 लेन काट रहा है, और एंटायर अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट्स ऑफ द स्लोप्स आर एक्सपोज्ड, और ये बरसात का मौसम में हो रहा है। मतलब हम इनवाइट कर रहे हैं, पूरा स्लोप गिर जाओ, ये हमारा किया हुआ है, हम कर रहे हैं क्योंकि गिरना चाहिए। मैंने लगता है, देख, मैंने आयदर तो समझ है और ये किया जा रहा है, ये तो समझ बिल्कुल ही नहीं है, जो कर रहा है उनको बिल्कुल समझ नहीं है, तो दोनों में एक होगा। तो ये जो हम डिजास्टर को इनवाइट कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए था। 5th पॉइंट, एनीवेयर इन द हिमालय, पर्टिकुलरली इन द लोअर हिमालयस, अब जहां wherever you make a big reservoir, like look at the Tehri reservoir. I'm not talking about the dam only. I'm look at the Tehri reservoir. By the side of the reservoir, you see many large scars in the slopes where landslides have taken place. The reason, one of the primary reason is, if you have a big exposed water body, and the water body and Tehri area is not cold area, it's a normal warm area. मैंने cold area मतलब स्नो आते हैं, ऐसा तो एरिया है नहीं। तो if it is exposed to hot sun, there is lot of moisture generated at the local level, and that moisture slowly infuse into the surface. And इसको effect जो होता है, जो मैंने बोला, there is a science of water, rock, slope and base rock. Base rock, soil cover, vegetation and moisture. So if you allow moisture and water to go into the soil and reach the base rock, then you are inviting a landslide. तो exactly वही हुआ है बहुत सारी जगह में, जो हमें जिस सरफेस को पानी से और मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन गुड वेजिटेटिव कवर
ताकि पानी ज्यादा जा नहीं पाए, ताकि जो अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट है उसके अंदर पानी इन्फ्यूज ना कर पाए, और उसके अंदर उसके ऊपर पानी आएगा तो कैपिलरी एक्शन में पानी अंदर जाएगा स्लोली, और जैसे ही बेस रॉक के का थोड़ा नीचे पहुंचेगा उसका एडिशन कम हो जाएगा, और एडिशन कम होने से एंटायर वेट नीचे आएगा। उसके ऊपर जो रोड बिल्डिंग और बहुत सारे जगह में देखा बिल्डिंग, जो घर बन रहा है, होटल बन रहा है, वहां भी टो कटिंग हो रहा है। एक पहाड़ का स्लोप है, स्लोप एक तो आप यहाँ एक्सपोज कर दिया, फिर यहाँ जो टो था इसको फ्लैट करने के लिए, रोड व कुछ बनने के लिए आपने यहाँ कट दिया, तो ये पूरा स्लोप अभी ऐसे हो गया, ऐसे हैंग कर रहा है, नीचे कुछ है नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये टो कटिंग जैसे ही आपने किया, स्लाइटेस्ट बिट ऑफ रेन और मॉइस्चर, द एंटायर स्लोप विल स्लाइड डाउन। और ये मैंने हजारों के संख्या में छोटे छोटे लैंडस्लाइड हो रहा है। ये सिर्फ हिमालय में नहीं हो रहा है। 2014 में जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक डैम है, छोटे डैम है, डिम्बे डैम, वहां मालिन डिजास्टर में 154 लोग फटाक से खत्म हो गए थे एकदम, एक अर्ली मॉर्निंग दैट एंटायर विलेज गॉट down under the landslide. The same thing happened. So-called non-understood, non-scientific developmental intervention. स्लोप में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग चैनल बना के पानी को अंदर जाने दिया. The entire slope got loose and the slope got, there is a huge landslide and the entire village got under the landslide. 154 people lost lives. So एक तो हमें हो क्या रहा है, उसका कारण क्या है, उसका पीछे साइंस क्या है, पहले ये समझना भी जरूरी है. Not just on rhetorics, but what is actually happening, that has to be understood. So this is also another thing that is happening. The other thing that I want to bring in is that the amount of vehicles, particularly diesel vehicles, tourism, लोगों पे पैसा है तो लोग रख रहे हैं, particularly the diesel vehicles in the upper reaches, जहां नजदीक में स्नो एंड आइस है, उस एरिया में, टेक लद्दाख फॉर इंस्टेंस, लद्दाख एंड टूरिज्म आर इनसेपरेबल नाउ. एंड इफ यू स्टैंड इन एनी मेन रोड इन लद्दाख, within 20 minutes you will say maybe 100 vehicles, 200 vehicles going, and 80%, 90% of them are diesel vehicles. अभी डीजल व्हीकल एक पेट्रोल व्हीकल से 7 से 8 गुना पार्टिकुलेट एमिशन करते हैं, और ये पार्टिकुलेट जनरली ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. तो वेयर विल ऑल दिस हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ ब्लैक कार्बन गो? थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर जाके स्नो एंड आइस के ऊपर डिपॉजिट होता है. एंड स्नो एंड आइस यदि फ्रेश स्नो होगा तो उसका रिफ्लेक्टिविटी अराउंड 92-93% है. मतलब सनलाइट जो उसके ऊपर गर्मी जो पड़ रहा है, सूर्य से लाइट एंड गर्मी, उसको 92-93% तो रिफ्लेक्ट कर देता है. तो 7-8% ही सोखते हैं, तो गर्म ज्यादा नहीं होता. जैसे ही उसके ऊपर ब्लैक कलर का, डार्क कलर का पार्टिकल आएगा, दैट एब्जॉर्ब्स मच मोर, इट एब्जॉर्ब्स अप टू 80% ऑफ द सनलाइट, पर्टिकुलरली सूट जो ब्लैक कार्बन. तो उसका स्नो एंड आइस का पिघलने का रेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप गर्मी को बर्फ का ऊपर सोखने के लिए रास्ता बना रहे हो. तो ये जो है, इसमें हापर रिचेस में, जहां स्नो एंड आइस का रीच नजदीक है, उस एरिया में स्नो एंड आइस मेल्ट, उसमें सडन फ्लैश फ्लड्स, और बाद में आपको जो स्टोरेज ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस, वो मैसिवली उसको खत्म कर रहा है. और आने वाले 20-25 सालों में जो इसका आधा से कम हो जाएगा. जो इसरो का स्टडी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उनका सैटेलाइट डेटा है जो 1970 का दशक का बीच से और 2010, मतलब 4 दशक के लगभग, थोड़ा सा 4 दशक का टाइम मान लीजिए. उन्होंने जो 860 ग्लेशियर में सैटेलाइट स्टडी किए थे थ्रू सैटेलाइट इमेजरी, वो भी डेप्थ का स्टडी उस टाइम नहीं था. डेप्थ का स्टडी 2007-8 के बाद ही है. लेकिन जो एरिया रिडक्शन है वो था करीब 22%. मतलब इतनी छोटी पीरियड में हिमालय क्षेत्र में स्नो एंड आइस कवर, इतने 860 ग्लेशियल फील्ड में जितनी हजारों लाखों साल से ग्लेशियल कवर था, स्नो एंड आइस कवर था, उसको 21-22% सिर्फ 40 साल में गायब हो गया. और उसके बाद से 2010 के बाद कर रहा हूं, उसके बाद से क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग का रेट और बढ़ा है. इस 14 साल में कितना हुआ है वो अभी नया स्टडीज का करना है, लेकिन कम से कम और 7-8% तो हो चुका. तो ये जो हो रहा है, जो रेट ऑफ मेल्टिंग 2.5 से 3 गुना बढ़ चुका है. हिमालय क्षेत्र में भी बढ़ चुका है, सिर्फ पोलर रीजियन में नहीं है. और हिमालय रीजियन में ये हमें समझना चाहिए,
कि हमें जो टेम्परेचर राइज के बाद एवरेज होता है हायर रीचेस में उससे ज्यादा है। नेपाल का कुछ एरियाज में जो रिजल्ट है 1.6 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है एवरेज में, जबकि नीचे प्लेन जो पेनिसुलर इंडिया में 1 डिग्री बढ़ा है, और हिमालय क्षेत्र में बहुत जगह में 1.4, 1.5, 1.6 डिग्री तक बढ़ चुका है। तो वहां इसका असर बर्फ पिघलना, नदियों का कम हो जाना, मॉइस्चर ज्यादा पकड़ना एयर को, सडन बारिश आना, मानसून को ज्यादा खींचना और ज्यादा एक साथ धड़ाधड़ बारिश हो जाना, ये चलते जाएगा। इस ढंग का स्थिति में हमें करना क्या है, ये हमें बहुत क्लियरली, मैं 4-5 मिनट में इसको खत्म, 5-6 मिनट में, हमें एक तो रियली पीपल्स रेस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है, एक तो उसके ध्यान देना पड़ेगा। कुछ साइंटिफिक चीज है, कुछ सिंपली सोशल, हमारा जो सोशल नेटवर्किंग है उससे हम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जब तीस्ता वैली में काम कर, तीस्ता बेसिन में काम कर रहे थे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, तीनों में हम काम कर रहे हैं। हमने तीस्ता को, आप जानते हैं, तीस्ता का बाढ़ में हर साल ऑलमोस्ट सिक्किम प्रभावित होता है, बंगाल का जलपाईगुड़ी एंड ये डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होता है, बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा, नॉर्थ बांग्लादेश का, उत्तरी बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। डालिया बैराज तक, बांग्लादेश में डालिया बैराज है, बंगाल में गजलडोबा बैराज है, गजलडोबा बैराज गेट खोल देता है, बांग्लादेश फ्लडेड हो जाता है। तो वहां हम लोगों ने पीपल टू पीपल मीटिंग और ये सब के बाद कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसके लिए ज्यादा कोई टेक्निकल जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल चीज भी कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग का पीपल टू पीपल जो मैकेनिज्म है वो पीपल्स कंट्रोल में होगा, लोगों का कंट्रोल में होगा। वी कैन ऑलवेज डेवलप दैट इफ वी जस्ट डू mapping of the, supposing we are talking about the area of Dhauladhar, if we just do, there are smaller rivers, Banuni, क्या बनेरी खड है, मानूनी खड है, और भी खड है, आप लोग जानते हैं ज्यादा। तो if we can just do the mapping, which are the major channels, rivers, खड गड वगैरह जो भी है, which are the habitations, कहाँ क्या खतरा है, जैसे हम लोग बोलते हैं vulnerability mapping, hazard and vulnerability mapping, बहुत सिंपल ढंग से गांव के साथ पार्टिसिपेटरी वल्नरेबिलिटी मैपिंग, एंड इस ढंग का अर्ली वार्निंग सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन कम्युनिटी रेस्पॉन्स। दैट इज वन थिंग जो हमारे लिए 2021 या 22 में बांग्लादेश को, सिक्किम से जब ये फ्लड का वार्निंग हमें मिला था, उस टाइम बांग्लादेश को ग्रुप को हमने उस आधार पे इमीडिएटली जानकारी दे पाया। उन्होंने अपना काफी सेविंग, घर तो हटा नहीं पाए लेकिन लोगों को हटाया, जो मूवेबल एसेट था उनको हटाया, काफी लोगों का जान बचा, काफी पशुओं का जान बचा, उनको प्रॉपर्टी बचा। तो एक तो ये सिंपल मैकेनिज्म कर सकते हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का चलते एक चीज बहुत स्ट्रांगली हुआ है, लोकलाइजेशन ऑफ वेदर इवेंट्स। मतलब पहले, आज से 25-30 साल पहले तक जो एक वेदर इवेंट, जो बारिश हो रहा है, ये काफी बड़ा जायगा में बारिश हो रहा है, लेकिन आज देखेंगे ये यहां हो रहा है, आपको गांव में हो रहा है, 4-5 किलोमीटर दूर में एकदम सूखा है। तो ये जो लोकलाइजेशन ऑफ वेदर इवेंट्स हुआ है, ये प्रेडिक्टेड था। 2012-13 में कुछ पेपर्स आया था जो ये प्रेडिक्टेड था। तो इसके लिए हमें, और मौसम विभाग जो अपना जानकारी देते हैं, कहां से देते हैं, कोई तो देहरादून से देते हैं, कोई शिमला से देते हैं। तो शिमला से जो जानकारी देगा, अभी सॉरी, धौलाधर का कोई गांव में वो जानकारी एक तो पहुंचना, यदि पहुंच भी जाए, मानिए व्हाट्सएप में आप जुड़े हुए हैं, आपके पास एक आया, लेकिन वो जानकारी एक बहुत बड़ा हिस्सा के लिए है, और जानकारी जब आपको गांव के लिए, आपको एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए ठीक नहीं बैठा, तो देन यू विल थिंक, अरे दिस इज नॉट यूजफुल फॉर मी, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। बट टुडे वी हैव वेरी सिंपल टेक्नोलॉजिकल एड्स, बहुत सिंपल मेजर्स है, जहां आप लोकल वेदर को लोकली आप मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं। देखिए, मौसम विभाग का करोड़ों रुपया का जो वेदर स्टेशन है, वो भी 100% करेक्ट, 100% लोकलाइज नहीं दे पाते हैं, संभव नहीं है, आज के दिन में साइंस में संभव नहीं है। लेकिन लोकल वेदर स्टेशन एक, यदि हम इनिशिएटिव ले, उसके चलते हम लोकल वेदर को थोड़ी देर के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बोथ इन राजस्थान एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो हरसील घाटी है, हरसील का एरिया में हम लोग ये किया है। लेकिन मुश्किल यही है, लोकल लोगों का इंटरेस्ट कब तक बना रहेगा। इसीलिए जब तक ना एक स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ है, साथ में पंचायत, ये दोनों का तालमेल जब होता है, तब जाके ये इस ढंग का चीज, जैसे मैंने बोला पहले, पीपल टू पीपल
जो कॉन्टैक्ट और अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे मानिए जो कोई भी नाला ऊपर से आते हैं, ऊपर में जो गांव है वो जब देखेंगे, और ये लेवल ऑफ द वाटर इज वेरी इजी टू मेजर। अब मार्क स्टिक जो वाटर कमीशन भी करते हैं, सीडब्ल्यूसी भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट वो भी करते हैं, सभी लोग मार्क वैसे ऐसे ही करते हैं। तो ऊपर का गांव से नीचे का गांव तक द एंटायर स्ट्रीम, रिवर, गट, खट, खदेड़ा, उसको यदि सिंपल मैपिंग करे और उसको इस ढंग से पीपल टू पीपल कांटेक्ट में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम करे, एक मेजर हो सकते हैं। लोकली वेदर का, लोकल वेदर फोरकास्टिंग, उसका थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। आजकल इसके लिए ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत इजीली पॉसिबल है, उसको हम कर सकते हैं। तीसरा, क्या क्या चीज में एज ए पॉलिसी स्टेट में होना चाहिए, जैसे मैंने बोला अपर रिचेस में, जहां स्नो एंड आइस का नजदीकी जगह है, मतलब उससे करीब 1000 फीट के अंदर आपको वॉट एवर इज द कॉस्ट, डीजल का और पेट्रोल का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट थोड़ा कम है इसीलिए डीजल व्हीकल ज्यादा चलते हैं, तो डीजल व्हीकल को आपको रोक लगाना ही पड़ेगा एज ए पॉलिसी। आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूं, डीजल व्हीकल्स emit 6 to 8% as much particulate emission, जो डार्क कलर का पार्टिकुलेट्स होता है, फाइन पार्टिकुलेट, PM10 एंड PM2.5, और पेट्रोल व्हीकल से 6 से 8 गुना तक करते हैं। एंड दैट पार्टिकुलेट एमिशन, द डार्क पार्टिकल्स shoots that deposit on the snow and ice and increase the melt rate। तो इसको हमें, इसके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लाना पड़ेगा। आपको व्हीकल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल व्हीकल चलाओ, CNG चलाओ, कुछ करो, लेकिन ऐसे एनी व्हीकल विल एमिट पार्टिकुलेट्स। बट सवाल ये है हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं आज के दिन में। मैं कोई यूटोपियन सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो दिस इज अनदर मेजर वेयर इंटरवेंशन इन द, पहला अंडरस्टैंडिंग, इंटरवेंशन इन द पॉलिसी लेवल, एंड द अदर थिंग दैट हैज टू बी डन is that the capacity of any area, any river, smaller area, any watershed, micro watershed, to drain out water, that has to be mapped up। मैंने आप यदि कितनी पानी में, क्योंकि अभी जो पहले जो एक ट्रेडिशन था, जो बड़ा नदी के बारे में हर बार लिया जाता है, जैसे मैंने अभी नर्मदा घाटी में बैठा हूं, तो नर्मदा में भी ये होना चाहिए, पर अभी देख के हम आ रहे हैं, जो सारे नर्मदा का जो अथॉरिटी है, सारे गलत मार्किंग किया है। जो मार्किंग मैक्सिमम फ्लड वाटर लेवल किया, उससे 3 मीटर ऊपर तक बाढ़ का पानी चढ़ा। तो ये जो रिवर में ड्रेनेज कैपेसिटी बेस्ड ऑन 100 ईयर मैक्सिमम रेन एंड फ्लड, इसका यदि हम नहीं कर पाएंगे तो इस ढंग का भयंकर फ्लड एंड लैंडस्लाइड ये बार बार आते रहेगा। एंड क्लियरिंग ऑफ द रिवर पैसेज, जो इसको आसान नहीं है, लेकिन इसका लड़ाई चल रहा है। इसका लड़ाई के नया कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं। जो मक डंपिंग एंड वो मक सिर्फ रिवर को नैरो नहीं करते हैं, मक बिकम्स अ कोरोसिव एजेंट व्हेन इट मिक्सेस विद द वाटर, एंड वो और नैरो होता है, जिसमें पानी में टर्बुलेंस बढ़ते हैं। उस टर्बुलेंस से जो पार्टिकुलेट्स एंड छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स सब आते हैं, तो इट बिकम्स लाइक ए सॉ, कटिंग टूल होता है। सिर्फ पानी उतना नहीं कटते हैं, जो पानी के साथ ये मिलके जो कटिंग टूल बनते हैं, उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। तो इसके ऊपर पाबंदी लगाना, कुछ ना कुछ ये करना, तो ये काफी सारी चीज है। इसके साथ जो खेती के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो एक बड़ा चीज है। और जो हम डिजास्टर जब बात करते हैं तब हम सिर्फ एक्सट्रीम इवेंट की बात करते हैं, मतलब सडनली कुछ हो गया, बहुत हेवी बारिश हुआ, बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गया। लेकिन जो स्लो ऑनसेट डिजास्टर, जो धीरे धीरे चल रहा है, जो आपदा आ रहा है, जैसे टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है खेती के ऊपर, वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्ट इज जब फसल पकने का टाइम आते हैं, तब यदि रात का टेम्परेचर, जो उस फसल का जो टेम्परेचर रेंज, उससे 1 से 1.5 डिग्री रात का टेम्परेचर यदि बढ़ा होगा, तो फसल सही ढंग से दाना नहीं बनेगा। और ये बार बार देखा गया, जो 22 में बड़ा स्केल में, नेशनल स्केल में हुआ, लेकिन बहुत जगह में ये आजकल दिखने मिलता है। तो इसके जो जानकारी और इसको काउंटर मेजर आपको लेना पड़ेगा, वो लोकल स्पेसिफिक जगह में हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम यदि अपना एरिया में नाइट टाइम टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हम डिपेंडेंट है मौसम विभाग का, जहां वेदर स्टेशन है वो कितनी 50 किलोमीटर है, कि 100 किलोमीटर दूर है, कि 200 किलोमीटर दूर है, कि दूसरा नदी घाटी में है, हमें पता ही नहीं है, तो उस पे आपको काम नहीं चलेगा। यहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन का आधार लेना पड़ेगा। और आज के दिन में कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, जो मैंने बोल रहा था, फॉरेस्ट में
जो मौसम का जो परिवर्तन, जो रेनफॉल ड्यूरिंग द एंटायर मानसून पीरियड व प्री मानसून पोस्ट मानसून मिला के आप देखेंगे पहाड़ में, बहुत इन हिमाचल उत्तराखंड, आपको लोअर रीचेस में फॉरेस्ट फायर्स का इंसिडेंट बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। और ये गिवन है क्योंकि लॉन्ग ड्राई पीरियड, टेम्परेचर ज्यादा रह रहे हैं, चीर लगाने का जो और एक डेवलपमेंटलिज्म का रिजल्ट है, जो नीडल्स एकदम रेडी टू बर्न है, तो आपको टिंडर अवेलेबल है, फायर जलाने का मटेरियल अवेलेबल है, यू हैव हायर टेम्परेचर, यू हैव ड्राई लैंड एंड ड्राई नीडल्स, तो रेडी टू फायर। तो आपको जो बनने का जो आग, जंगल के आग के लिए कंडीशंस फेवरेबल बनते जाते हैं। तो इसके लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम समझना, इसको समझना क्यों बढ़ रहा है इस ढंग का घटना। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो काम है जस्ट ब्लेम द पीपल, पीपल आर डूइंग ऑल दिस, तो इट्स नॉट दैट, हमें समझना पड़ेगा। साथ में एफआरए का बहुत बड़ा रोल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो एफआरए लेके काम कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ काम किए थे, बट आई विल नॉट गो इनटू फॉरेस्ट राइट्स इशू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू एड्रेस दिस, बट प्लीज फॉरगिव मी, आई एम जस्ट कीपिंग दैट असाइड। तो ये जो फॉरेस्ट फायर बढ़ने का पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको अर्ली वार्निंग कैसे हमें मिल सकते हैं और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ये अवेलेबल है टुडे। आज के दिन में हिमालयी क्षेत्रों के कोई दुनिया में कहीं भी फॉरेस्ट में फायर कहाँ शुरुआत हो रहा है, आप घर में बैठ के आप कर सकते हैं, आपको पता हो सकते हैं। और इसका टेक्नोलॉजिकल टूल्स पब्लिक डोमेन में कुछ हद तक अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में। तो ऑल दिस एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, आई विल स्टॉप हियर, I think I have gone on for quite long, and let's open for questions and discussions or inputs. Thank you. Akanksha? Yes. Thank you, Soumyada. Abaji, would you like to add here some points on the work that Jagori has done? Yeah, no, I mean, I think what he has elaborated, जो आपने बोला है, also turn on your camera. मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि ये साइंटिफिक डिटेल्स की जो आप बात कर रहे हैं, पर आपने जो एक बात कही सौम्यदा कि ये लोकलाइज तो हो ही नहीं सकता, दिस हैज गॉट एन एंटायर काइंड ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट सिस्टम। मैंने शुरू में, आप शायद नहीं थे, मैंने यही बात की थी कि डूम्सडे ग्लेशियर अंटार्कटिका में मेल्ट हो रहा है, तो हम कई बार ये भी सुनते हैं कि एक बटरफ्लाई की फ्लटर भी पूरे एरिया को इम्पैक्ट करती है। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट आल्सो दैट आई टॉक्ड अबाउट इज लॉस ऑफ एग्रीकल्चर इज डेफिनेटली very very important issue which I also touched upon, but majorly the kind of loss of biodiversity, the loss of bio living beings, that also has kind of unprecedented increase in terms of, so उसमें हम किस तरह से, आप जो कह रहे हैं कि पीपल्स रिस्पॉन्स, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो आप डेवलपमेंटलिज्म कह रहे हैं ना, इवल डेवलपमेंटलिज्म अकॉर्डिंग टू मी, unscientific, unthoughtful, and only for the profit of the a few. Absolutely, it is in favor. So how do you look at the marginalized community? How do you bring the entire question of how you want to see a sustainable model from the perspective of the poor and the marginalized? You know, but for them, there is no access to information. They don't have the kind of फैसिलिटीज की आप पहले से प्री वार्निंग उनके साथ शेयर करें, जो कि हम शायद कर सकते हैं, पर बहुत एक इतना बड़ा व्यापक पूरा सिस्टम है ये, और इसके अंदर अगर आप ऊपर से नीचे तक रोकथाम नहीं कर पाएंगे, अब लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई जगहों पे। अभी मैंने देखा उड़ीसा के जंगलों में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप जो पीपल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीपल के वॉइस की बात कर रहे हैं, पीपल बेस्ड लेवल की बात, काम की बात करें, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इतनी ऑप्टिमिस्टिक आज नहीं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो रिप्रेसिव मैकेनिज्म है ऑफ द स्टेट आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सपोर्ट पीपल्स प्रोटेस्ट, पीपल्स डिमांड्स। बट उसमें व्हाट आई सेड क्लियरली इज दैट नॉट ओनली प्रोटेस्ट बट एक्शन बाय पीपल ऑन मल्टीपल लेवल। हाँ, जैसे जो बात मैंने किया था, एक कोई भी रिवर का एंटायर कोर्स में देयर आर कम्युनिटीज, रिवराइन कम्युनिटीज,
एंड रिवर से सडन फ्लड्स, इरोशन, ये सबसे ज्यादा, एंड रिवर का साइड में लैंडस्लाइड, उसमें भी इरोशन होता है, लैंड लॉस, ये काफी ज्यादा हो रहा है. सो वन ऑफ द वेज, apart from intervening, apart from trying to change policies and all, which is not going much in the present regime, against the present regime, people's own action, जैसे मैंने एग्जांपल दी, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, हमारे सरकारी अर्ली वार्निंग सिस्टम काम ठीक से नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट लोकलाइज्ड. वी हैव टू कम टू लोकलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. सेकेंड, हमें लोकलाइज्ड नॉलेज एंड नॉलेज जनरेशन एंड डिसेमिनेशन, इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा. और तीसरी जो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिया, जो ये हम सोचते हैं जो दिस आर ऑल इन द डोमेन ऑफ द एक्सपर्ट्स, ये काफी लोग हैं, इनफैक्ट हमारे सर्कल में भी ये सब तो एक्सपर्ट के बाद है, ये लोग क्या करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. ए लॉट ऑफ इट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग. वंस यू अंडरस्टैंड ए फ्यू बेसिक थिंग्स, जो कोई भी एक स्कूल में पढ़ने वाले, क्लास 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, देन यू कैन एक्ट ऑन इट. जो वाटर लेवल के बात है, मेल्ट रेट के बात है, बा फसल पकने का टाइम, उसका टेम्परेचर के बात है, ऑल ऑफ दिस, बा यदि मानिए जैसे वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज बिकम ए मेजर चैलेंज फॉर द हिमालयन रीजन इज लैंडस्लाइड्स. एंड लैंडस्लाइड का पीछे देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट आई एक्सप्लेन. ये सुपर हेवी रेनफॉल्स, कटिंग डाउन द कवर, जो रेनफॉल को, प्रेसिपिटेशन को जो क्विकली ड्रेन अवे करने का जो तरीका था, then allowing the moisture and rain to percolate into base up to the base rock. तो ये सारे कारण है जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंटलिज्म, जो क्लाइमेट क्राइसिस को नया, और लोकल जो इंसैनिटी बाय इविल डेवलपमेंटलिज्म, जो भी बताइए. इंसेन डेवलपमेंटलिज्म मैं लिखा था, तो आप इविल डेवलपमेंटलिज्म बोलते थे. तो ये कॉम्बिनेशन है. तो दिस कैन ऑल्सो बी, जैसे आई हैव सीन व्हेन वी आर वर्किंग आफ्टर द 2013 उत्तराखंड डिजास्टर, when we started working in Uttarkashi district, upper reaches from Uttarkashi to Gangotri and Achiganga Valley, so 22 villages, we started working with them. वहां का लोकल vulnerability मैप एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक्त. इस गांव का क्या क्या किस्म का खतरा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. ना सरकार के पास, ना गांव का बारे में, गांव का लोगों का पास में कोई कॉन्क्रीट आइडिया था. जब हमने पार्टिसिपेटरी vulnerability मैपिंग करवाया, तब बहुत सारे गांव बोला हाँ यहाँ है, यहाँ है. तो उसके हमने जब साइंटिफिकली इंटरप्रेट किया, क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर से स्लाइड होने का, रॉक, ह्यूज बोल्डर्स कमिंग डाउन. पुराली गांव है जो झाला और उसके ऊपर है, भागीरथी का ऊपर हिस्सा, ऊपरी हिस्सा में जो 8000 फीट ऊपर के जो गांव है. इस ढंग का लोकल लेवल का वल्नरेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी वल्नरेबिलिटी मैपिंग करना बहुत आसानी से संभव है. थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का चाहिए. उसके आधार पर हम यदि इस ढंग का चीज कर पाए, तो कहाँ मिनिमल क्या इंटरवेंशन में उस रिस्क को हम रिडक्शन करते हैं. देखिए, रिस्क से रिडक्शन का 2 प्रिंसिपल है बेसिक. एक तो रिस्क से लोगों का दूरत्व बढ़ाओ, दूरी बढ़ाओ. जहां रिस्क है वहां से लोग जो अफेक्टेड हो सकते हैं उनका दूरी बढ़ाओ. बहुत जगह में वो संभव नहीं है. दूसरा, रिस्क को जगह को आइसोलेट करो, वो बहुत जगह में संभव है. ये मैं टेक्निकली बोल रहा हूं, इसको इन प्रिंसिपल. तो ये दोनों में एक प्रिंसिपल बहुत जगह में संभव है. और तीसरा है, रिस्क जिस चीज को अफेक्ट करेगा, मानिए आपको घर टूटने का डर है, लैंड का धंसने का डर है, उसको आप, जो खतरा है उसको आप मिनिमाइज करो, उसको स्ट्रेंथन करो. तो यदि हम पहले समझ पाए ये क्या क्या रिस्क फैक्टर हमारे एरिया में है, उसका इंटेंसिटी व स्केल क्या है, और उसको रिस्क को कम करने का, तब कोई आपदा नहीं आया. ये आपदा का पहले करना पड़ेगा. आपदा नहीं आया, आपको ये करना पड़ेगा. वल्नरेबिलिटी रिस्क मैपिंग व वल्नरेबिलिटी मैपिंग कीजिए. उसके आधार पर रिस्क का, उसके साथ रिस्क का इंटेंसिटी कहाँ क्या है, और उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं. जो मैंने बोला, ये 3 प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है, इसको यूटिलाइज करके. जो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक तो रिस्क और लोगों को दूरी बढ़ाए, दूसरा रिस्क को आइसोलेट करो, और तीसरा रिस्क जिस चीजों में इफेक्ट करेगा उसको कैपेसिटी बढ़ाओ. मतलब कोई भी चीज जो अफेक्टेड होगा उसको कैपेसिटी बढ़ाओ. तो ये जैसे एक गांव में जो नदी का किनारे है, एक गढ़ का खड गधेड़ा जो सबसे नजदीक होगा, उस गढ़, गधेड़ा, खड, गढ़ जिसका, जब एक फ्लैश फ्लड आएगा, उन घरों का नुकसान सबसे ज्यादा होगा. जो अपर रीचेस में होगा उनको कम होगा. तो यदि फिर दूसरा चीज होगा,
यदि आपको स्लाइड होगा तो जो थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड का एरिया का नीचे है उसको ज्यादा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल फैक्टर है। तो इस ढंग का पार्टिसिपेटरी वल्नरेबिलिटी मैपिंग, risk identification and risk reduction measure, it is very much within the capacity of a combination of NGOs and local communities. Second, जो मैंने बोला था, जो people to people early warning system, it's very much within our own capacities. Third, जो मैंने बोला, जो localized weather समझना और forecasting, it's very much within the capacity of a combination of local NGO and local community. तो इस ढंग का बहुत सारे जो ट्विस्ट चौथा, जो व्हाट आर द स्लो ऑनसेट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, जो बहुत लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग आज से 15 साल पहले बीबीसी ने एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंटरी को एक सेट बनाया था, जिसमें एक था द स्टोरी ऑफ द वीपिंग एप्पल और द वीपिंग एप्पल, ऐसे कुछ नाम देके, जो हिमाचल का एप्पल का ऊपर था, जो टेम्परेचर जिस ढंग से बढ़ा है पिछले 15, 20, 30 सालों में, उस ढंग से जहां एप्पल का लिमिट था, एप्पल उस जगह में नीचे स्तर पे नहीं होके अभी ऊपर में होगा। But the upper area land do not belong to you. It is belonging to the forest department. So what do? आपको जो सेब का खेती था, जो निचली हिस्सा में, वहां सेब अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो all these slow onset events are also simultaneously happening. One is the extreme event, जिसमें मैंने बोला इस 4 किस्म का intervention, it is very much within the capacity of a local NGO, गुड इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग एनजीओ एंड कम्युनिटी कॉम्बिनेशन। कुछ एरिया हमें पॉलिसी में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने आप तो अपर रिचेस में डीजल व्हीकल व हाईली पॉल्यूटिंग जो शूट एमिटिंग पार्टिकल का व्हीकल और उस रंग का एक्टिविटी बंद नहीं कर सकते हैं। देन यू हैव टू इंटरवेन इन द पॉलिसी दैट इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर बैन डीजल व्हीकल्स। इट डजंट रियली अफेक्ट एनीवन्स बिजनेस, क्योंकि आप ठीक है अलाउ करना है। टूरिज्म इज ए मेजर लाइवलीहुड नाउ इन मेनी प्लेस। ऑफ कोर्स, जो और एक चीज है, टूरिज्म का कैरिंग कैपेसिटी कितना है वैली वाइज, ये बहुत साल से बात चल रहा है, हो नहीं रहा है। जैसे आप पूरी भागीरथी घाटी में देखे, अलकनंदा घाटी में देखे, मैं उत्तराखंड को बात कर रहा हूँ, हिमाचल के भी एक एक घाटी में देखे, जहां नदी है, ऊपर बर्फ है, टूरिज्म, एक तो रिलीजियस टूरिज्म, कोई धाम है, मंदिर है, ये है, वो है, साथ में नेचर टूरिज्म, साथ में ये ठीक है, ये पैसा ला रहा है। बट व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वैली? हैव वी डन स्टडीज अबाउट कैरिंग कैपेसिटी, व्हिच इज वेरी मच पॉसिबल। इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ कैपेसिटी, बट उसके दैट इज वेरी मच पॉसिबल टू डू। तो ये जो 7-8 किस्म का इंटरवेंशन के बाद जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कोई बहुत हाई लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज के दिन में हम लोगों का जो कलेक्टिव्स है, इस कैपेसिटी है, इतना नॉलेज हमारा कलेक्टिव में है, तो ये सारी चीज हम कर सकते हैं। समस्या यहां आते हैं, कोई भी 1, 2, 3 स्टेप लेंगे, उसके कहाँ लेंगे, उसके लिए रिसोर्स कहाँ से आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। हमारा जो लार्जर ये जो अलग अलग ग्रुप्स है, जो वेस्टर्न हिमालय विकल्प संगम है, उधर हिमालय का ऊपर जो हिमालय क्या पीपल फॉर हिमालय जो ग्रुप बना है, एक लूज ग्रुप है, उसका कोई कॉन्क्रीट एजेंडा अभी तक बना नहीं है, एक्सेप्ट द स्टेटमेंट बना है, एक डिमांड चार्टर बना है, हम दोनों ने, हम सभी ने उसके ऊपर काम किया सब मिलके, लेकिन उससे आगे कोई डिमांड, उसके आगे कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है। क्या हम इस ढंग का कॉन्क्रीट एजेंडा ले सकते हैं? जो मैंने 7-8 अलग अलग स्टेप बोला, इसको ले सकते हैं, क्योंकि यदि हमें हिमालयन क्षेत्र को लिवेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम रखना है तो ये लेना पड़ेगा। बिकॉज द अल्टीमेट थिंग इज द वे ग्लोबल थिंग्स आर हैपनिंग, ये आने वाले 70, 80, 100 साल तक ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। जो मैंने शुरुआत किया था उससे मैंने फिर से जवाब दे रहा हूं, तो हमें तैयार होके करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और ये 7-8 स्टेप संभव है, और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज हमारा है, इसके लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय एनजीओस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हमारे काफी ग्रुप्स का है, क्या हम इसको कॉन्क्रीटली समझ के आगे बढ़ा पाएंगे व ले पाएंगे? कम से कम 2-3 को लेके आगे बढ़ पाएंगे? दैट इज वन क्वेश्चन। Thank you so much for clarifying and also providing some possible action plan. I was just thinking one of the things that we may be able to do is participatory vulnerability mapping of the area that got very badly affected in 2020. Yeah. And we have all the data, we have the names and detailed information on each and every household that was damaged and the shops that were gone.
द क्वेश्चन हियर इज, मैं ये सोच रही थी कि जितने भी कई सारे घर पुराने मिट्टी के घर हैं और वो करते हैं, लिपाई भी करते हैं, उनको मजबूत भी करते हैं, पर वो बहुत वल्नरेबल घर होते हैं। अब उनके पास न तो उस तरह के रिसोर्सेस हैं कि वो उस घर को पक्का बनाए, और बनाने के बावजूद भी शायद जो पक्के घर थे वो भी टूटे। तो ये देखना पड़ेगा, पर आई थिंक एक बार एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग करके देखते हैं कि इसको मिटिगेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और उसमें लोगों की सहयोग क्या है, और सरकार से हम किस तरह की एक हेल्प मांग सकते हैं, सो दैट even their responsibility, accountability is also sought. So that's what I have been thinking. And also, आपने फॉरेस्ट की बात की, मैं भी ये कह रही थी कि फॉरेस्ट जो जल रहे हैं बुरी तरह से और बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर, और पूरी रात जलते रहते हैं क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनको बंद किया जाए, आसानी से खत्म किया जाए। ये सारा इतना इंटरकनेक्टेड है ना, फॉरेस्ट है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, आपने बीपिंग एप्पल्स की बात करी। ये देखना होगा कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कैसे देख के और इसकी समझ बना के कुछ रास्ते निकालें और वो व्यापक स्तर पे कर सकें, ताकि हम एक लोकलाइज करना अलग बात है, पर अगर हम इसको एक कैंपेन की तरह कर पाए लोगों के साथ तो शायद मदद मिलेगी। पर सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका डेवलपमेंटलिज्म है, जो रुक नहीं रहा, जो सोच नहीं रहा। अब हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सारे लोगों की जमीनें ले ली हैं, मतलब तहस नहस कर रहे हैं, मार्केट को खत्म कर रहे हैं। अब उसमें क्यों इतना प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, पर सरकार एक बार जब तय करती है तो वो रुकती नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आज के जमाने में हमारे पास बहुत छोटे छोटे शायद स्ट्रेटेजीज हैं, रणनीतियां हैं, पर बड़ा मुद्दा है, बहुत व्यापक मुद्दा है, उसके ऊपर किस तरह से रोकथाम की जाए, वो एक बिग चैलेंज है। आई थिंक वी नीड टू सिट टुगेदर and think about it in collective manner and work out a charter of active plan. इसमें कुछ चीजों में हम हस्तक्षेप और भी तरीका से कर सकते हैं, ऐसे जो ऑफ कोर्स आज के जो जमाना है हम सब जानते हैं, प्रेजेंट रेजिम जो है वो लोगों का वॉइस सुनने में बिल्कुल उनका कोई रुचि नहीं है, मैंने 100% उसके बाहर है। लेकिन बहुत सारे तरीका, जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2015 का नेपाल अर्थक्वेक आप लोगों को याद होगा, और हम लोगों ने बहुत सारे रिस्क के बात किया क्योंकि क्लाइमेट का चलते, तो अर्थक्वेक के बात नहीं किया। लेकिन पूरी हिमालय क्षेत्र में, जैसे कांगड़ा का उस एरिया जोन 5 में है, उसके नीचे कुछ एरिया जोन 4 में है, नीचे के हिस्से में, इनफैक्ट दिल्ली तक जोन 4 है। तो ये पूरी क्षेत्र अर्थक्वेक के लिए, भूकंप का दृष्टि से मैंने बहुत ही वल्नरेबल है। तो यहाँ कुछ चीज जहां भूकंप हो सकता है ज्यादा जोर, उस एरिया में ऐसे कुछ मेजर जो वेल नोन है वो लेना चाहिए और सरकार से उसको एज ए प्रिंसिपल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसका पैरेलल है, जैसे कोस्टल एरिया में जो साइक्लोन प्रोन जोन है, वहां हाउस बनाने का कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। जब मैंने 2021-22 सुंदरबन का कम्युनिटी के साथ काम कर रहा था, तो वहां घूम रहा था, 80 to 90% घर का रूफ ऐसे बना हुआ है, ये जैसे रूफ बोल रहा है साइक्लोन आओ और मुझे उड़ा के ले जाओ। जो रूफ, जो गेबल रूफ, आप हाई विंड एरिया में नहीं बनना चाहिए। मैं जब पूछा तो लोग बोला हमने तो ये कभी सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो ये जो कहाँ क्या खतरा है, उस जगह में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाई विंड वेलोसिटी जहां होता है वहां गेबल रूफ नहीं बनना चाहिए। आप गेबल रूफ बना के लाखों घर बना के बैठे हो, और जब तूफान आके छत उड़ा देगा, पूरा घर का वल्नरेबल करेगा, तो आप बोलेगा देखो क्या होगी। तो ये जो सिंपल नॉलेज, और ये जब हम लोगों ने लोकल जो वीमेंस ग्रुप, जो नारी जागरण समिति जो एरिया में है, उनके साथ जब ट्रेनिंग किया, काम किया, उन लोगों ने पूरी क्षेत्र का सर्वे किया, कहाँ क्या होना चाहिए क्या ना, एक छोटा मोटा एक लेवल पे कैंपेन जैसे बना। सिमिलरली पहाड़ में अर्थक्वेक प्रोन जोन में, फ्लैश फ्लड प्रोन जोन में, लैंडस्लाइड प्रोन जोन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द गवर्नमेंट, नॉट ओनली अबाउट द रोड। When people make houses, I have seen in multiple places, they do it completely unscientific, completely unscientific. तो ये जो, और अपना ही घर बनाने का टाइम जो आप कर रहे हो, तो फ्यूचर में उसको नीचे से स्लाइड होने का ग्राउंड आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो कम्युनिटी के साथ
डायलॉग करना ही पड़ेगा, साथ में इस ढंग का आउटरीच मैकेनिज्म। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि वेस्टर्न हिमालय विकल्प संगम एज ए कलेक्टिव इसको लगता है जो दिस इज अ ग्रेट एनफ थ्रेट, बिग एनफ चैलेंज, इसको करना चाहिए, तो देन वी कैन डिस्कस मोर, वी कैन सिट डाउन टुगेदर फेस टू फेस ओवर ए डे और टू, we can plan out in a better fashion, and then look for where can support come, because there are a lot of organizations who are willing to support on the climate issues. On the if you just go on the development, if you just say development, ये इसके लिए रोड के लिए हो इसीलिए करेंगे, then many support organizations are a bit afraid now with the present regime acting like mad. But if you present it as a climatic issue and then you are doing, and then do whatever we do, we clearly bring in the insane developmentalism and the climate crisis together, then there are groups which possibly can support this kind of work also. तो वो मुझे बार बार लगता है कि कॉन्क्रीट एक्शन ऐसे बहुत जगह में जो मैंने 7-8 बोला पॉसिबल है, लेकिन हम कर नहीं रहे, हम काफी सालों से कर नहीं रहे। बट अभी तो इट्स मोर देन हाई टाइम, मैंने मोर देन हाई टाइम टू एक्ट ऑन दिस, not just talk about this, act on this. Anyone else would like to ask any questions? Any clarification? Or any comment? Or any input? I don't think so. Akanksha? Yes, Vinod here has raised their hand. Can you hear me? Yes. Yeah. Yeah, Soumya Datta ji, namaskar. Just a Sunday back, you had spoken to us on Zoom. I just want to share something that we have great respect for what you said, that we have to involve the local community in small actions. And we do have some best practices like that. Without going into the two best practices that I would like to share, I want to say that as we increase this communication between us, people like us who have field work also, who have experience with creating what we call as a social net, best practices sharing should become a part and parcel of our dialogue. Just to try and summarize the type of best practices I'm talking about. In Maharashtra, in a very dry area in Sangli district, from 2013, we started looking at the river called Agrani. With 107 villages, we managed to reach up to them. From the local wisdom, we managed to get knowledge of why the river went dry. After 13 years, nearly 13 years now of greening the hillsides, all in the entire basin, tying up with the forest department to green the area which is in the forest department hands, which is very difficult to do for civilians. Now the river which used to flow seasonally for 1.5 months, now is flowing for more than 10 months. And for the local people who are farmers, the manner in which they count the impact is very simple, that they used to take only one crop, now they are taking 2 crops. Now, when Soumya, when you spoke about involving the local people in small things which affect their economy immediately, which give them some earning capacity, there are so many best practices happening. I'm sure that all the people listening just now will have such best practices with them. Whether it is in the Himalayan region, whether it is a drying up river, some forum for best practices sharing are there already. I'm sure I'm speaking on one of them. I just wanted to speak about that while we do suggest, like Soumya is suggesting, that we have to engage the local people, we do have successful models where local people have been engaged. So we would have to create at least a national, if not international, directory of that, which would become an experience library. And the work can continue. Just to sum up the Agrani River Basin involvement of the young people there, they are having a daily Zoom meeting from 7 to 8 o'clock, a daily Zoom meeting. Excellent. So whoever is there, it is like when they come home from the farmlands,
They used to sit under a tree to discuss. Now they just come onto this space, the Zoom space, and they keep discussing on a daily basis whatever is happening. They don't wait for the disaster. So my feeling was, I got enthused when Soumyaji, you spoke of the dialogue between the people and the people. If we can find ways like that, and I'm sure there are many other communities where this has been established by NGOs who went to intervene, but then they came out and the people are continuing the dialogue. I just wanted to share on a positive note that such things are possible. Thank you so much for this time. Thank you. Thank you. And it's an excellent example. That's what I was saying. Excellent example. But let me just intervene again and say, I'm sorry for that. We also went beyond India. In fact, we worked on transboundary rivers, and we were able to bring in people of Sikkim, which is the origin state of Tista, to people of Bangladesh. And this communication, people to people, there are many others that we did, but this one went beyond the national boundaries. And today, right now, that group is communicating. They are giving update from Sikkim. West Bengal group is giving update. Bangladesh people are receiving. They are sending questions. That WhatsApp group is already going on. So many of these, if you can, like I said, if you can map out the river, establish this kind of network, a large part of the risk factor can be reduced, not totally eliminated, but reduced.